Dear students, welcome to Genesis. This is my second video on the chapter absorption by roots. आज के इस वीडियो में we are mainly going to cover three phenomena. Number one, imbibition, number two, diffusion and third, osmosis. Well, imbibition या imbibition एक ऐसा phenomena है जहाँ dead or living plant cells, they can absorb water by the process of surface attraction. इसे समझना है तो एक चीज बहुत easily हम समझ सकते हैं. For example, if I give you a spoonful of sugar और उसमें मैंने पानी दे दिया and then I mix it. So what do I say? The water has actually dissolved in the sugar that was given there, or you can say the sugar dissolved in the water. तो इसमें एक dissolving हुआ, मतलब एक molecule दूसरे molecule के साथ dissolve कर गया, absolutely mix कर गया. But in case of imbibition, such phenomena will not happen. What happens is surface attraction. That means the water molecule will come and attach only to the surface of the substance. Substance जो होते हैं, specially कौन से substance इस phenomena को दिखाते हैं? Those substances which are made up of cellulose और प्रोटीन. इसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मुझे लेना है तो फॉर एग्जाम्पल अ डेड लॉग ऑफ वुड. ये ऑफ कोर्स इट इज मेड अप ऑफ डेड प्लांट सेल्स, लेकिन ये प्लांट सेल से बना है तो इसका मतलब इसका जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. इस डेड लॉग ऑफ वुड को अगर आप बाहर किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं विच इज वेरी ह्यूमिड और रादर विच हैज वेरी हाई वाटर वेपर कंटेंट इन इट, यू विल सी दैट डेड लॉग ऑफ वुड स्वेल्स इन साइज. जैसे मॉनसून के समय हमारे घर के दरवाजे, वुडन दरवाजे खिड़कियों के साथ होता है. सो दे स्वेल इन साइज एंड दे जैम. वो जैम हो जाते हैं बिकॉज व्हाई? दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ इम्बाइबेशन. और याद रखना, इम्बाइबेशन जिस सब्सटेंस में होता है उसका हमेशा एक राइज इन वॉल्यूम होगा. And because of this rise in volume, wooden doors or wooden windows they jam during monsoon. और एक एग्जांपल हम देख सकते हैं in case of seeds. किसी भी dry seed को अगर आप किसी soil में रखते हैं which has moisture or which has water in it, you will see that the seed first swells in size, breaks open the seed coat and then the baby plant comes out of it. होता क्या है? The seeds that I am talking about, they have very high protein content in their cotyledons. So because of these seeds become highly or rather they attract water molecule very quickly onto their surface. और जब भी ये water molecule उनके surface में आके attach होते हैं by the process of imbibition, they will increase in volume. वो volume में increase करेंगे तो they will break open the seed coat and there will be germination. So ये था imbibition. This is a very very essential point because this also helps the root hair cells to absorb water from the soil. So, next आता है topic diffusion. Diffusion is the free movement. मैंने फ्री मूवमेंट क्यों कहा? बिकॉज इस मूवमेंट में कोई भी एनर्जी का एक्सपेंस नहीं होता है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और इन एनी फॉर्म, देयर इज नो एक्सपेंस इन एनर्जी हियर of molecule from a region of higher concentration to a region of lower concentration when in direct contact. और जब मैंने molecules की बात की है, I have made it a general statement where I am not specifically telling कि gaseous molecule या solid molecule या liquid molecules सब में diffusion होता है. और diffusion हमारे आसपास होता रहता है लेकिन हम कभी उसके बारे में जानते ही नहीं थे. आज से you are going to be very conscious. आपको समझ में आएगा कि हाँ diffusion हो रहा है. इसके examples चलो gaseous molecules में समझते हैं. For example, you are in one room and your mother is cooking something very delicious in her kitchen. तो क्या होता है? आपको quickly कुछ देर बाद वो delicious food का smell आपके रूम तक आ जाता है. ये कैसे होता है? Basically वो odor जो gaseous molecules है, they mix in the air which is present in the kitchen, and since air can move from one place to another very quickly, it quickly comes to you. होता है कि air molecules के बीच में जो gap है, उस gap में जाके settle होते हैं वो odored molecules and along with the air molecule they travel to your room. और एक एग्जाम्पल अगर लिक्विड में लेना है, फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ ग्लास ऑफ वाटर और उसमें आपने एक ड्रॉप इंक डाल दिया या कोई भी पेंट, कॉन्सेंट्रेटेड पेंट डाला, वेरी सून यू विल सी दैट द वाटर इन द एंटायर ग्लास चेंजेस. क्यों? अगेन वही बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स जो स्पेस था वहां जाके ये पिगमेंटेड मॉलिक्यूल्स और द कलर्ड मॉलिक्यूल्स गो एंड सेटल एंड वेरी क्विकली दे मिक्स इन द वाटर एंड टर्न द एंटायर वाटर कलर्ड. इसका एक एग्जाम्पल बुक में भी दिया हुआ है वेयर दे आर टेकिंग अ beaker which contains water and in that beaker they will put a crystal of potassium permanganate. It is pink in color and they are going to keep this and watch.
So पहले 5 minutes में they will see that the water molecules just near the potassium permanganate they turn pink in color, rest of the water remains as usual. Then कुछ देर बाद after 10 minutes वो देखेंगे ये कलर और ज्यादा स्प्रेड कर गया है, and with time if they keep it as it is, थोड़ी देर में ये देखेंगे कि almost 90-95% of the water which is present in the beaker it turns pink in color. तो इस चीज को करने में सोचो फॉर एग्जाम्पल इट 20-30 मिनट्स लग गए. इफ यू वांट टू हेस्टन द प्रोसेस कि नहीं मुझे ये जल्दी करना है, बहुत फास्ट करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू जस्ट स्टर द वाटर एंड बहुत जल्दी ये डिफ्यूजन हो जाएगा. सो व्हेन यू आर स्टरिंग यू आर बेसिकली डूइंग व्हाट, यू आर एक्सीलरेटिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन. यही कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग शिकंजी बनाते हैं या हम कोई भी किसी भी चीज का घोल बनाना हो तो वी स्टर इट. अदरवाइज भी अगर आप 1 टेबलस्पून शुगर एक बीकर और एक ग्लास फुल ऑफ वाटर में डाल देते हैं, यू कीप इट एज इट इज एंड टेस्ट इट आफ्टर 2 hours or 3 hours, तो भी वो वाटर आपको स्वीट ही टेस्ट में मिलेगा. लेकिन हम क्यों उसे घोलते हैं? बिकॉज वी वांट टू डू इट फास्ट, इसीलिए. सो दिस इज डिफ्यूजन वेयर देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. बार बार आई एम स्ट्रेसिंग ऑन वन थिंग, ये किसी भी मूवमेंट मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन व्हेन दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अच्छा, अगर हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन को एक बार जल्दी से समझना है, आई एम टेकिंग 2 beakers A and B. In beaker A I have taken 7, 8, 9, 10, some 10 balls. Here I have taken 9 balls and here there are only 2 balls present. ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये पार्टीशन रिमूव कर दिया. So obviously I know नेचर में ये टेंडेंसी है that the molecules always move from a region of higher concentration to a region of lower concentration. So the balls which are present in A will have a tendency to move to B, not the other way around. यही कॉन्सेप्ट अगर आप सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करें तो वो बन जाता है आपका डिफ्यूजन. अब इसी डिफ्यूजन के एक स्पेशल टाइप को हम लोग पढ़ने वाले हैं which is known as osmosis. Now osmosis is basically movement of water molecules, specifically मैंने ये mention कर दिया है, from a region of higher concentration to a region of lower concentration through semi-permeable membrane. These two are the points which makes it different from diffusion. Diffusion में किसी एक particular molecule पे हमने stress नहीं किया था, यहाँ हम specifically water molecule या liquid molecules की बात करते हैं. Whereas वहाँ पे in case of diffusion if they are in direct contact तभी वो process start हो सकता है, but here there is a specific requirement of semi-permeable membrane to separate the two substances. Otherwise movement as usual from higher region to lower region ही होने वाला है. अच्छा, इसको समझने के लिए और एक चीज जानना भी जरूरी है. What is solution? Solution का मतलब है solvent which is basically the liquid part plus solute which is the solid part. तो अगर मैं शुगर सोल्यूशन की बात करूं तो शुगर इज द सोल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट. सो जब हम ऑस्मोसिस पढ़ेंगे या ऑस्मोसिस के बारे में सोचेंगे, देन यू प्लीज रिमेंबर वन थिंग, यू डू नॉट टॉक अबाउट द सॉल्यूट. आप उस सॉल्यूशन के सॉलिड पार्ट के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं. यू ओनली टॉक अबाउट द मूवमेंट विच इज हैपनिंग इन द लिक्विड पार्ट. अब क्योंकि मैंने यहाँ वाटर मॉलिक्यूल कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सॉल्यूशंस विच हैज वाटर. नहीं, ऐसा भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है जहां सॉल्वेंट वाटर नहीं है, तो उस कंडीशन में आप उस सॉल्वेंट के वाटर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को कंसिडर करेंगे. जैसे एक सिंपल वे से अगर मुझे ये समझाना हो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बीकर और इस बीकर के अंदर मैंने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का पार्टीशन किया है और इस पार्टीशन के दोनों साइड को मैंने नेम कर दिया है A and B. इन दिस आई हैव टेकन हाईली कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन, मतलब बहुत ज्यादा मीठा. सोचो एक ग्लास में अगर 10 चम्मच आप चीनी घोल देते हैं तो काइंड ऑफ दैट. सो इट इज हाईली कंसंट्रेटेड, whereas ये वाला इट इज लेस कंसंट्रेटेड. दैट मीन्स ये भी शुगर सोल्यूशन है, इसमें भी मिठास है लेकिन बहुत कम एज कंपेयर टू दिस. नाउ व्हाट डिड आई से, पार्टीशन किसका है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सो देयर विल बी ऑस्मोसिस. नाउ क्वेश्चन इज मूवमेंट कहां से कहां होगा. अगर हम बात करते हैं सिर्फ ऑस्मोसिस की, वेयर वी ओनली टॉक अबाउट वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल ए में ज्यादा है या बी में? ए में वाटर मॉलिक्यूल कम है, लेस वाटर, बिकॉज देयर इज मोर शुगर इन इट. B में on the other hand more water
and less sugar. So movement होगा of water molecule from B to A. ये है osmosis. So through a semi-permeable membrane, the water molecule will move from a region of higher concentration. Water molecule का concentration यहाँ बहुत ज़्यादा है, to a region of lower concentration because and their partition is of semi-permeable membrane. इसके कारण होगा क्या? इस बीकर में वाटर का लेवल और बढ़ जाएगा. जहां पहले यहां तक वाटर था दोनों में, अब वो लेवल और ऊपर चला जाएगा और इस शुगर सोल्यूशन की जो मिठास थी वो कम हो जाएगी बिकॉज इट्स बिकमिंग डाइल्यूट नाउ. इस फेनोमेना को दो साइड से हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि मैंने कहा कि दिस मेनली हैपेंस व्हेन देयर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो आपको ये तो समझ में आ रहा है कि दिस फेनोमेना कैन बी सीन इन नेचर मोस्टली इन अ सेल बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर. सो अगर मैंने एक सेल को एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखा विच हैज मोर वाटर कंपेयर टू द सेल, सेल के कंपैरिजन में ज्यादा पानी है इसके पास, सो द वाटर मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट टू मूव इनसाइड द सेल. तो सेल के अंदर जब पानी जाता है उसको कहा जाता है एंडोस्मोसिस. This is one type of osmosis. Similarly, or a condition where I keep the cell in a beaker which has more solute and less water. पानी कम है, बहुत कम है और ज़्यादा solute है. So what will happen? Water will start to move out of the cell. What is happening to the cell? It is called exoosmosis. So there are two types of osmosis. Number one endoosmosis and number two exoosmosis. अब जरा खुद सोचो कि अगर किसी सेल के अंदर पानी अंदर आ रहा है, the cell will shrink or will swell. The cell will swell. So जब किसी सेल में endoosmosis होता है तब वो सेल swell करता है. Similarly अगर किसी सेल से पानी बाहर चला जाता है तो वो सेल उस वक्त श्रिंक करता है. इसका एक डेली लाइफ में जो एग्जांपल है वो है, आप एक रेजिन ले ले जिसे हम किशमिश कहते हैं एंड यू कीप इट इन अ बोल ऑफ वाटर ओवरनाइट. नेक्स्ट डे यू विल सी इट स्वेल्स बिकॉज क्या हुआ, द किशमिश, जिस किशमिश को आपने एक बोल में रखा था, इट हैड लेस वाटर कंपेयर टू द एनवायरनमेंट इन विच इट वाज. सो वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट विल एंटर इनटू इट एंड विल स्वेल इट. सिमिलरली आप एक ग्रेप ले लें, एक ग्रेप, एंड यू कीप इट और you know dig it inside a beaker, a small beaker that is filled with salt. कुछ देर बाद आप क्या देखेंगे, that grape shrinks. क्यों, क्या हुआ, उसको मैंने एक ऐसे environment में रखा जहां water कम था, as a result of which it loses its water by the process of exoosmosis and the grape will shrink. Now we will apply these concepts in understanding few experiments which are given in our syllabus. Let's do it quickly. अभी हम जितने भी एक्सपेरिमेंट समझेंगे ये सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑस्मोसिस को समझने के लिए किया गया है. सो टू अंडरस्टैंड देम पहले हम एक कंट्रोल करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कंट्रोल इन एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप. इट हेल्प्स यू टू एनालाइज द चेंजेस दैट आर हैपनिंग इन योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप. सिंपल वर्ड्स में अगर समझाना हो, सोचो आपने एक ऐसा कोई मेडिसिन बनाया है जिसको खाने के 1 महीने में ही एक इंसान 20 kgs लूज कर सकता है. सो इन दैट केस हाउ कैन यू से दैट ये मेडिसिन खाने से ही वेट लॉस होता है. So you will ask two individuals to help you in this experiment. एक जिन्होंने मेडिसिन लिया और दूसरा जिन्होंने मेडिसिन नहीं लिया. So जिन्होंने मेडिसिन लिया वो 1 month बाद जब उनका हम वेट चेक करेंगे, हम देखेंगे प्रोबेबली वो 60 kgs के थे एंड दे हैज टर्न टू 40 kg. Whereas जिन्होंने मेडिसिन नहीं लिया उनका वेट सेम रह गया. So here in this case the person who has not taken medicine is control of your experiment. मतलब वहाँ हम situation as it is रखते हैं and the person who has taken द मेडिसिन वो आपके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के एक पार्ट बन जाते हैं बिकॉज ही इज गोइंग टू शो यू द चेंजेस दैट विल हैपन ड्यू टू योर एक्सपेरिमेंट. सो अभी इस कंडीशन में मैंने 2 सेटअप बनाया है. देयर इज वन कंट्रोल एंड देयर इज वन एक्सपेरिमेंटल सेटअप. अगर ध्यान से देखा जाए पूरा सेटअप हूबहू सेम है. देयर इज अ बीकर. इन दिस बीकर वी हैव टेकन वाटर इन बोथ द कंडीशंस. देयर इज थिसल फनल. इस फनल को थिसल फनल कहा जाता है. दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स ऑन आइदर साइड एंड इसे एक बेस के ऊपर रखा गया है. चेंजेस जो हैं वो हम देखते हैं. थिसल फनल दोनों में सेम है.
इस थिसल फनल के अंदर मैंने प्लेन वाटर लिया है, बट इसमें मैंने लिया है शुगर सोल्यूशन। जस्ट ये है मेरे एक्सपेरिमेंटल सेटअप का वो डिफरेंस। वाटर इन द बीकर, वाटर ऑल्सो इन द बीकर, ये बीकर को लेबल किया है हमने। एंड लास्ट वी हैव टाइड द माउथ ऑफ द थिसल फनल विद अ स्पेशल टाइप ऑफ अ मटेरियल जिसे सेलोफेन पेपर कहते हैं। ये दीज मटेरियल्स आर बेसिकली सेमी परमिएबल इन नेचर। यू कैन यूज सम अदर मटेरियल ऑल्सो, जैसे एनिमल ब्लैडर्स, उसका यूज किया जा सकता है, सेलोफेन पेपर एंड जैसे एनिमल ब्लैडर, एग मेम्ब्रेन एंड सेलोफेन पेपर। ये दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ सेमी परमिएबल, सो इट्स वेरी क्लियर टू यू, इट विल अलाउ इजी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बट नॉट अदर मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए फ्री छूट देते हैं ये लोग। सो व्हाट विल हैपन व्हेन दिस एक्सपेरिमेंट इज रन, वी सी आफ्टर सम टाइम सम चेंजेस इन दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्या चेंजेस होती हैं? क्योंकि ये इस थिसल फनल के अंदर जो वाटर है, इट हैज मोर शुगर इन इट, तो मैं ये कह सकती हूँ दैट द concentration of water is more in the beaker compared to the thistle funnel, and as a result of which, due, as we know, osmosis will happen across a semi-permeable membrane and cellophane paper is a semi-permeable membrane, तो यहाँ osmosis होगा। और osmosis होगा कैसे? Water molecules will start to move from the beaker into the thistle funnel। कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे there will be a rise in water in the thistle funnel, यहाँ तक पानी पहुंच जाएगा, and the taste of the water sugar solution which is present in the thistle funnel, it is going to be less sweeter, क्योंकि अब ये dilute हो चुका है, इसके अंदर water molecules enter कर चुके हैं। whereas जब हम कंट्रोल को देखेंगे, सेटअप सेम है, बट इसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल है, एंड कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन द बीकर एंड द थिसल फनल। सो लेवल ऑफ वाटर, वो अगर पहले यहां तक था, विल रिमेन वेयर इट वाज। सो यहां हम लोग देखेंगे एक राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, एंड द शुगर सोल्यूशन विल बिकम डाइल्यूट। इन दिस केस देयर विल बी नो राइज इन द लेवल ऑफ वाटर। एक्सपेरिमेंट 2 जब हम करेंगे, वहां हमने एक ही चेंज किया है, कंट्रोल जैसा था वैसा ही है, सेलोफेन पेपर है, लेकिन यहां अगर ध्यान से देखो, इंस्टेड ऑफ सेलोफेन पेपर नाउ आई हैव टेकन रबर शीट। रबर शीट बाय नेचर होता है इनपरमिएबल, मतलब इट डज नॉट अलाउ एनीथिंग टू कम थ्रू इट, ना तो इधर से उधर जाने देता है, ना तो उधर से इधर आने देता है। सो नाउ इन दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कुछ देर बाद जब हम लोग इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखेंगे, वी विल सी द लेवल ऑफ द शुगर सोल्यूशन विच वाज देयर इनसाइड, इट रिमेन्स एज इट इज, जैसा था वैसा ही रह जाएगा, बिकॉज कोई मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ये रबर शीट होने ही नहीं देगा। एंड कंट्रोल, ऑब्वियसली कंट्रोल में तो जो वाटर मॉलिक्यूल, वाटर लेवल था थिसल फनल में, इट विल रिमेन एज इट इज, बिकॉज हमें पता है दोनों वाटर इन द थिसल फनल एज वेल एज इन द बीकर हैव सेम कंसंट्रेशन, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, देयर इज नथिंग मिक्स्ड इन द वाटर। इन दिस केस बिकॉज ऑफ द इम्परमिएबल शीट देयर विल बी नो मूवमेंट इन द वाटर मॉलिक्यूल, सो देयर विल बी नो राइज इन द वाटर, और देयर विल बी नो राइज इन द वाटर लेवल इनसाइड द थिसल फनल। नाउ लेट्स डू एक्सपेरिमेंट नंबर 3। इन एक्सपेरिमेंट 3 हम फिर से क्या करते हैं, पूरा सेटअप एज इट इज रखते हैं, बट हियर इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ रबर शीट और अ सेलोफेन पेपर, वी आर यूजिंग मसलिन क्लॉथ। मसलिन क्लॉथ एक हाईली परमिएबल मटेरियल है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, इट विल नॉट बी एबल टू सिलेक्टिवली अलाउ ओनली वाटर मॉलिक्यूल। अब ये अपने साथ वाटर मॉलिक्यूल एंड शुगर मॉलिक्यूल्स दोनों को पास होने देगा, एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटी द वाटर विल हैव अ टेंडेंसी ऑफ फ्लोइंग डाउनवर्ड्स, तो अपने साथ ये शुगर मॉलिक्यूल को लेकर भी यहाँ आ जाएगा, एंड व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ ड्रॉप इन द लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन द थिसल फनल, एंड देयर विल बी अ राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर which is present in the beaker। इसके पहले जो दो एक्सपेरिमेंट, स्पेशली द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जहां हमने बात किया था सेलोफेन पेपर का, मैंने कहा था देयर विल बी अ राइज इन द लेवल ऑफ द वाटर इन द थिसल फनल। अच्छा, व्हाट विल हैपन टू द वाटर व्हिच इज प्रेजेंट इन द बीकर, इट विल गो डाउन, क्योंकि वही वाटर तो एंटर कर रहा था, और इस सिचुएशन में जस्ट रिवर्स होगा। व्हाट विल हैपन, द वाटर लेवल इन द थिसल फनल विल गो डाउन बिकॉज वो मसलिन क्लॉथ के थ्रू बाहर निकल आया, एंड द वाटर व्हिच इज प्रेजेंट इन द बीकर विल राइज, द लेवल ऑफ द वाटर इन द बीकर will rise। So these were the
three experiments of osmosis. Now we are going to discuss last experiment, which is the fourth experiment, जहां हम लोग एक special type of material use करते हैं और यहाँ instead of a thistle funnel हम लोग एक capillary tube use करेंगे. Material का नाम है whisking bag and instead of a thistle funnel we are using a capillary tube in the experiment. So in the experiment 4 we are using a whisking bag and we wrap the whisking bag around a capillary tube and we have submerged the entire setup in a beaker which contains water. जैसा पहले experiment में था वैसा ही है. The only change is in the whisking bag and thistle funnel. Here you are using capillary tube and whisking bag instead of a cellophane paper. So what happens after some times is यहाँ क्योंकि the concentration of the water molecules is less inside the whisking bag compared to that present in the beaker, कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे there will be a rise in the level of water in the capillary tube. So initially अगर level of water R1 था, after some time the level of water will go to R2 and what will happen to the level of water inside the beaker in this case? So the level of water will go down in the beaker and there will be a rise in the level of water inside the capillary tube. So with this we have covered 4 experiments of osmosis. In my next video I am going to cover osmotic pressure, which is a part of this. So we are going to meet soon in my next video.